شروع کرتا ہوں یشوع مشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے دع یقی کے تعلق سے کہ دع یقی کیا ہے۔ بہت سارے میرے سٹوڈنٹس اور ساتھی اور دوست اس بات کے لیے بار بار سوال کرتے رہے اور کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدیہ اور دع یقی، چندہ، نذرانہ، شکرانہ وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ میں اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف سٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے بلکہ کلیسیا کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں دع یقی کے مد میں، یہ پیسہ کیسا ہے اور کہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دع یقی کن لوگوں کا حق ہے۔ یہ 4 حصوں میں استعمال کی جاتی ہے، 4 لوگوں کے لیے۔ پہلی ہے بات کہ یتیم، بیوہ، مسافر اور لاوی۔ لاوی کا مطلب ہوتا ہے جو چرچ میں یا خدا کے گھر میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے۔ بیواؤں کے لیے اس لیے کہ ان کا کوئی آسرا نہیں اور چرچ کا جو بیت المال ہے اس سے کچھ نہ کچھ ان کی کفالت کی جائے۔ یتیموں کے لیے اس لیے کہ تاکہ وہ پڑھائی سے رہ نہ جائیں اور کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ لیں اور ان کی فیوچر جو پلاننگ ہے، ان کی زندگی کا جو کی امید ہے وہ بالکل بیکار نہ ہو جائے، وہ رہ نہ جائیں، نا امید نہ ہو۔ مسافروں کے لیے اس لیے کہ وہ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو ہوٹل نہ ڈھونڈتے رہیں یا جگہ نہ دیکھتے رہیں کہ جی میں کہاں رہوں گا، اور ان کے لیے کوئی ایسی جگہ ہو چرچ میں کہ وہاں پر وہ رات گزار سکیں اور چرچ ان کو کھانا پینا دے۔ یہ نہیں کہ وہاں پر ان کو باربیکیو کر کے دیں، جو دال روٹی ہے سمپل وہ کھائیں، جس طرح سے جو سکھ ہیں ان کے گردواروں میں اس طرح سے ہے، اور مسلمانوں کے بھی جو مساجد ہیں ان میں حجرے بنے ہیں، وہاں پر وہ رات گزار لیتے ہیں۔ لیکن ہم دوسروں کو تو دیکھتے ہیں، خود کو دیکھیں کہ ہم جو پادری صاحبان ہیں وہ دع یقی کی مد میں اتنا پیسہ لوگوں سے بٹور رہے ہیں، ہتھا رہے ہیں، اور یہ پیسہ جب ہتھیایا جاتا ہے تو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ اپنے فیشنوں پر، اپنے بناؤ سنگار پر۔ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ 25 30 ہزار کی وہ اپنی بناوٹ پر فیس دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، بالوں کے رنگ بدلتے ہیں اور ان کی بیویاں تیار ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہالی ووڈ کے کوئی ہیرو ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ خدا کا پیسہ ہے، یہ دع یقی ہے، یہ پروٹیکشن ٹیکس ہے، یہ ابراہیم سے شروع ہوا اور ابراہیم نے صدق سالم کے بادشاہ کو دیا، یعنی کہ سم جو نوح کا بیٹا تھا وہ یروشلم کا پہلا کنگ تھا۔ یروشلم کے بڑے نام آئے ہیں، بہت سارے نام اس کے بدلے گئے ہیں، تو وہ وہاں پر مکمل طور پہ مضبوط اور ہمت والا بادشاہ تھا۔ تو ابراہیم نے لوط کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سم کی فوجیں استعمال کی، اور جو مال غنیمت تھا وہ جب واپسی پر آئے تو اس نے اس میں سے دع یقی
जो प्रोटेक्शन टैक्स था वो सिम को दिया, और बाकी के पैसे जो थे या बाकी का माल जो था वो फौजियों ने आपस में बांट लिया, क्योंकि इब्राहिम ने कहा मुझे नहीं चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कहे कि हमारे सबब से इब्राहिम अमीर हुआ है। इसी तरह से यकूब ने जब दैयकी की बात की कि जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसमें से 10वां हिस्सा दूंगा, यानी कि उसने कहा कि मेरा प्रोटेक्टर, मेरा संभालने वाला मेरा खुदा है और मैं उसको दिया करूंगा। और फिर जब मूसा का टाइम आ गया तो उसने भी कौम पर यह टैक्स लगाया कि ये पैसे इकट्ठे हों और उसी पैसे में से लावी भी खाएं जो हैकल में काम करते हैं, और गरीबों के लिए भी हो, यतीमों के लिए भी हो और मुसाफिरों के लिए भी हो। अब जब हम नैदनामे में आ जाते हैं तो वहां पर पालूस कहता है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और मसीह खुदावंद के टाइम में जब हम देखते हैं तो यहूदा के पास थैली थी और वो चंदा होता था उसके पास। जैसे मैंने कहा कि जो हदिया है ये चर्च की सोविनियर है, चर्च की चीजें हैं जो लोग खरीदते हैं, जैसे कि खुदा के सिफाती नाम है, या 10 अहकाम की प्लेट है, या सलीब है, या प्रेयर शाल है, या शायरबानी के बर्तन हैं, कोई ऐसी चीज, या बाइबल है, या गीतों की किताबें हैं। तो वो कीमत के तौर पर नहीं होती, वो हदिये के तौर पे होती हैं, कि जो बेशक उस पे कीमत होती है लेकिन उसको कीमत नहीं कहा जाता, कहा जाता है ये हदिया है। फिर जब हम देखते हैं कि नजराना, तो मैंने पहले भी बताया था कि नजराना वो होता है जो नजर किया जाता है। अच्छा लगा गाना तो आपने जो सिंगर था या परस्तार था आपने उसको कुछ ना कुछ दे दिया, या कोई खुदा का खादम है वो अच्छी तरह से स्टडी करवा रहा है, बाइबल स्टडी है, या वो टीचिंग कर रहा है या प्रीचिंग कर रहा है, या कोई खास ऐसा टॉपिक है जो आपके मन भा गया तो आप उसको नजराना देते हैं। चंदा वो है जो चर्च की बनावट के लिए, उसके श्रृंगार के लिए, रंग पेंट के लिए, या पर्दे हैं या फर्श है, तो ये उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। या पादरी साहब कहीं जाते हैं मिशनरी टूर पर तो उनके लिए किराया या उनका जो ज़ादे राह है उसके लिए चंदा किया जाता है कि हम अपने पास्टर को इस मिशनरी टूर पर ये सहूलत देते हैं। फिर शुक्राना जो है वो मैंने बताया था कि ये फारसी का लफ्ज़ है शुक्र, शुक्रगुजारी। शुक्र जो अब नॉन प्रोनाउन में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये शुक्रगुजारी की बात है। जब शुक्राना है तो ये अरबी में शुक्रन है और फारसी में तशक्कर है, और जो आप तुर्की ज़ुबान में आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि तशक्कुर दारुम। और इसी का रूप, इसका स्केल बदल जाता है कि किसी बच्चे के की कामयाबी पे जब दिया जाता है, या ज़मीन की खरीद के लिए दिया जाता है, या कोई आप गाड़ी लेते हैं तो उसका जब शुक्राना देते हैं तो उसको एक ख़ास मौके पर उसको कहा जाता है सदका। अरबी में सदका कहा जाता है और अबरानी में सिदका कहा जाता है। अब आप अंदाज़ा कर लें सदके की चीज़ें या सिदके की चीज़ें या शुक्राने या नजराने, जो इस तरह का सिस्टम जब चल पड़ता है तो बड़ा एहतियात करना चाहिए कि कहीं हम शुक्राना तो नहीं खा रहे, कहीं हम सदका तो नहीं खा रहे। क्योंकि जब किसी ने सदके की चीज़ें या कुर्बानी की चीज़ें बेवक्ते तौर पर खाई तो एली कहन का क्या हाल हुआ, उसके बेटों का क्या हाल हुआ। अब क्या हाल हो रहा है, जो पादरी साहबान या उनकी औलाद
खा रहे हैं वही सदका, वही शुक्रगुजारियां, तो एंड क्या होता है कि वो लोगों के बच्चे जिनका शुक्राना खाया है, बच्चा किसी का पास हो गया, उन्होंने कहा पादरी साहब ये हमारी शुक्रगुजारी ले लें। पादरी साहब लेके आ गए, घर में वो गोश्त बना रहे हैं, भून रहे हैं, खा रहे हैं, तो मजे उड़ा रहे हैं, लेकिन उनका अपना बच्चा पढ़ाई में नालायक हो गया, क्योंकि वो दूसरों का सदका खा रहे हैं, दूसरों की शुक्रगुजारी खा रहे हैं। शुक्रगुजारी दरअसल ये चर्चेज में या हैकल में या खुदा के घर में दी जाती है, वहां पर जो बांटा जाता है वो आप खाएं, लेकिन जब आपको कोई जाती तौर पर देता है तो वो नजराना होता है, और जब आपके किसी काम के लिए दिया जाता है वो चंदा होता है, और जब सोविनियर के लिए पे किया जाता है तो वो हदिया होता है, और जब खास दिनों के लिए प्रोटेक्शन का जो टैक्स मुकर्रर किया गया है उसे दायकी कहते हैं, और जब किसी की कामयाबी पर या घर की कामयाबी है या पढ़ाई में कामयाबी है या गाड़ी की कामयाबी है या कारोबार की कामयाबी है, जब कामयाबी पर कुछ किया जाता है तो उसका कहा जाता है सदका। जब शफा मिल गई तो उसका दिया जाए तो उसको कहते हैं सदका। अरबी में सदका, अबरानी में सिदका, और जो फारसी है उसमें उसकी शुक्रगुजारी, और तुर्की में उसको कहते हैं तशक्कुर दारुम। दारुम इसलिए हम ये शुक्रगुजारी कर रहे हैं, तशक्कुर दारुम, इस वजह से हम शुक्र कर रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि जो लोग ये चीजें खाते हैं उन पर क्या असर होता है। मेरा दादा भी पादरी था, मेरा बाप भी, हमारे रिश्तेदार भी खिदमत में हैं, मैं खुद खिदमत में हूं, मेरे बच्चे भी खिदमत में हैं, लेकिन मेरी अपनी फैमिली में यह है कि हम पालूस की तरह हाथ से मेहनत करते हैं, अपने हाथ से कुछ देते हैं, हम इन चीजों से अवॉइड करते हैं, बचते हैं। अब मैं ये खाता नहीं खोल के बैठना चाहता कि मैं अपने बच्चों की कामयाबियों के बारे में बताऊं या अपने बारे में बताऊं, सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि कोशिश करें कि आप सिर्फ नजराना लें। दयकी जो है वो चर्च में जाए और चर्च में 4 लोग इसे इस्तेमाल करें। हदिया जो है वो जो भी सोविनियर है वो उसके लिए है, और चंदा जो है वो जिस काम के लिए इकट्ठा किया गया है उसी पे लगाया जाए। और जो शुक्राना है वो चर्च में जाए, मिठाई हो, भले बिरयानी की देग आ जाए, भले मीठे चावल आ जाएं, भले पैसे आ जाएं, आप पूछें कि भाई जी या बहन जी आप ये किस बात के पैसे हैं। ये जी मेरा बेटा पास हो गया या मेरी बेटी डॉक्टर बन गई तो ये शुक्रगुजारी है, तो उसको कहें कि जी ये चर्च में दी जाएगी, ये मेरे लिए नहीं है। लोगों को तालीम दें, लोग बड़े सियाने हैं, लोग आपको साफ साफ बताएंगे कि पादरी साहब ये नजराना है, ये हमारी तरफ से आप नजराना कबूल करें, ये शुक्रगुजारी है, हम चर्च में शुक्रगुजारी लेके आए हैं। कभी भी अपने बच्चों को शुक्रगुजारी ना खिलाएं। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है कि आप सदके की चीजें कहते नहीं है कि एक अक्सर माएं कह देती हैं कि मैं सदके जावां, यानी कि मैं तेरे ऊपर कुर्बान, मैं तेरी जगह पे मेरा जो हो जाए। तो जब आप किसी के बेटे का शुक्राना लेते हैं, सदका, वो कहते हैं ये सदका है या नजराना शुक्राना है, तो शुक्राने को कभी अपने बच्चों को ना खिलाएं, वरना आपके बच्चे नालायक हो जाएंगे, कभी वो बरकत नहीं पाएंगे। इसलिए बरकत लेने के लिए आप मेहनत करें, खुदावंद के हुजूर में बैठे, दुआ करें, खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।